Thermodynamics and kinetic stability. Thermodynamics and kinetic stability. Two types of stabilities are recognized for the complex. First, thermodynamic stability. Second, kinetic stability. थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक स्टेबिलिटी, ये दो टाइप का स्टेबिलिटी होता है कॉम्प्लेक्स के लिए. एक है थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, सेकेंड है काइनेटिक स्टेबिलिटी. Thermodynamic stability deals with the bond energy, stability constant, redox potential property refers to the equilibrium conditions. Thermodynamic stability deal करता है bond energies, stability constant और redox potential से. redox potential क्या है? जो equilibrium condition रहता है उस property का. Kinetic stability discuss rates and mechanisms of the chemical reactions, formation of intermediates, complex, activation energy for the process, etc. Kinetic stability discuss करता है rate, chemical reaction का mechanisms या फिर intermediate complex का formations, जो process के लिए activation energy भी डिस्कस करता है ये. थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी बॉन्ड एनर्जी, स्टेबिलिटी कांस्टेंट, रिडॉक्स पोटेंशियल को डिस्कस करता है. काइनेटिक स्टेबिलिटी रेट, केमिकल रिएक्शन का रेट्स, मैकेनिज्म्स को डिस्कस करता है. कॉम्प्लेक्स का इंटरमीडिएट फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करता है और प्रोसेस के लिए एक्टिवेशन एनर्जी के लिए डिस्कस करता है. स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशंस. तो कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी कांस्टेंट जो कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है. स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स रिफर टू टेंडेंसी टू एग्जिस्ट अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशंस. तो कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी रिफर करता है टेंडेंसी इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर. इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू मेटल-लिगैंड बॉन्ड एनर्जी. रिलेटेड रहता है मेटल-लिगैंड बॉन्ड एनर्जी से. 3.1 थर्मोडायनामिक एस्पेक्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स. Complex का thermodynamic aspect. Thermodynamic equilibrium constant referring to the standard activity scale can be obtained by. Thermodynamic equilibrium constant refer करता है standard activity scale जो मिलता है किससे? First, studying very dilute solution. Total electrolyte concentration is less than 10⁻³ molar, in which activity coefficient have practically the value of unity. यहाँ पे एकदम डाइल्यूट सोल्यूशन को स्टडी करते हैं. मतलब उसका ऐसा डाइल्यूट सोल्यूशन जो है उसका टोटल इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन 10⁻³ मोलार से भी बहुत कम रहता है. मतलब इतना कम रहता है उसका कॉन्सेंट्रेशन, जहाँ पे एक्टिविटी कोफिशिएंट का प्रैक्टिकली वैल्यू जो है यूनिटी है, मतलब 1 है. फिर वी कैन स्टडी दोज system where there is high background of electrolyte, or study the system in presence of electrolyte by maintaining the ionic strength. और हम ऐसे सिस्टम के बारे में स्टडी कर सकते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट बैकग्राउंड ज़्यादा है, और सिस्टम स्टडी कर सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट के प्रेजेंस में जहाँ पे आयनिक स्ट्रेंथ मेंटेन होता है. म्यू इज इक्वल टू हाफ CZ² monovalent ion. Second, very dilute solution where the activity coefficient can be obtained thermodynamically or empirically. Thereby Huckel theory will not affect the whole system. The dilute solution जहाँ पे activity coefficient जो है बहुत ही dilute solution जहाँ पे activity coefficient थर्मोडाइनमिक्स या एम्पेरिकली thereby Huckel theory को ऑब्टेन करता है, वो इफेक्ट नहीं करता है पूरे सिस्टम को. थर्ड, by determining the equilibrium constant at different ion strength and then extrapolating to infinite dilutions. तो equilibrium constant determine करके अलग अलग ion strength में और extrapolating करता है infinite dilution में. Method 1 is limited to only very stable complex. पहला method 1 जो है stable complex के लिए limited है, which are formed even in very dilute solution, जो form होता है dilute solution में भी. For studying weak or moderately weak complex, high concentration of metal-ligand must be used. तो वो weak या फिर moderately weak complex
जिसका मेटल का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो, लिगैंड जो है उसका भी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा वो यूज़ होता है. द एक्टिविटी कोफिशिएंट कैन बी कैलकुलेटेड बाय डेबायर-हकल फार्मूला और द फार्मूला. एक्टिविटी कोफिशिएंट कैलकुलेट होता है डेबायर-हकल फार्मूला से या फिर दूसरे फार्मूला से. बट इफ़ देयर आर नंबर ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट, example in stepwise complexation reaction, there is a lot of uncertainty in the value of this coefficient and the experimental data may find widely varying values of stability. तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट होता है. स्टेप वाइज कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शंस एग्जाम्पल है. तो बहुत सारे अनसर्टिनिटी रहता है कोफिशिएंट का वैल्यू के लिए और एक्सपेरिमेंटल डाटा जो फिट करता है स्टेबिलिटी के अलग अलग वैल्यूज़ को. Constant and activity constant. Constant activity coefficient. When the value of beta mn0 is obtained by extrapolation of a series of beta mn values determined at different ionic strength. तो बीटा एम एन का वैल्यू मिलता है जब बीटा एम एन का सीरीज एक्स्ट्रापोलेट होता है, डिटरमाइन होता है अलग अलग आयोनिक स्ट्रेंथ में. द प्रॉब्लम अराइजेस to which function of ionic strength should be used in this situation. प्रॉब्लम ये आता है कि आयोनिक स्ट्रेंथ का पूरा फंक्शन जो है यूज़ होता है सिचुएशन में. Whether the value of log beta mn are to be plotted against I raised to 1 by 3, I raised to 1 by 2, जहाँ पे log beta mn को प्लॉट किया जाता है किसके अगेंस्ट I raised to 1 by 3, I raised to 1 by 2, etc. The deviation of the value of beta mn obtained by different extrapolation method may amount to several 100%. तो बीटा mn का वैल्यू का डेविएशन मिलता है अलग अलग एक्सट्रापोलेशन मेथड जहाँ पे 100 बहुत सारे 100% अमाउंट यूज़ होता है. स्क्वायर रूट म्यू वर्सेस बीटा mn, बीटा 0 mn. Kinetically aspects of complex. The ability of a complex to engage itself in reaction involving the replacement of one or more ligand in its coordination sphere by other ligand is called the stability of the complex. कॉम्प्लेक्स का एबिलिटी एंगेज करने का रिएक्शन में जहाँ पे एक या एक से ज़्यादा लिगैंड रिप्लेसमेंट होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर में दूसरे लिगैंड की वजह से, उसको बोलते हैं स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स. The complex that undergo rapid substitution, half-time period or reaction rate K is used to denote the speed of the reactions are termed labile. तो जो कॉम्प्लेक्स रैपिड सब्स्टिट्यूशन में चला जाता है जिसका हाफ टाइम पीरियड या फिर रिएक्शन रेट के यूज़ होता है स्पीड ऑफ रिएक्शन के स्पीड को डोनेट करने के लिए, उसको बोलते हैं लेबाइल. whereas those with low rate of substitution is called inert. और जिसका सब्स्टिट्यूशन का रेट स्पीड काफ़ी कम रहता है वो है इनर्ट. तो जिसका सब्स्टिट्यूशन का स्पीड फास्ट रहता है वो लेबाइल और जिसका सब्स्टिट्यूशन का स्पीड स्लो रहता है वो है इनर्ट. Note, the inertness of the complex has nothing to do with stability and determined thermodynamically. कॉम्प्लेक्स के इनर्टनेस मतलब कॉम्प्लेक्स का अगर सब्स्टिट्यूशन बहुत स्लो है उसका स्टेबिलिटी से कोई लेना देना नहीं, वो स्टेबिलिटी जो थर्मोडायनामिकली डिटरमाइंड है. 3.3 कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स. इलेक्ट्रोलाइट का कैरेक्टर कैसा होना चाहिए? The electrolyte used during finding the stability constant must have the following characteristic. इलेक्ट्रोलाइट जो यूज़ होता है कांस्टेंट स्टेबिलिटी कांस्टेंट ढूंढने के लिए उसका ऐसा कैरेक्टर होना चाहिए. द कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट का कैरेक्टर क्या है? इलेक्ट्रोलाइट शुड बी हाईली सॉल्युबल. इलेक्ट्रोलाइट हाईली सॉल्युबल होना चाहिए. सेकेंड, इलेक्ट्रोलाइट कॉन्स्टिट्यूएंट्स. The electrolyte constituent should not undergo redox reaction with metal ion and ligand and complex. Electrolyte constituents जो है redox reaction में जाना नहीं चाहिए मेटल आयन के साथ, लिगैंड या और कॉम्प्लेक्स के साथ.
Cationic part of the electrolyte should not associate with metal ion ligand and complex. इलेक्ट्रोलाइट का cationic part जो है वो associate नहीं होता, metal ion ligand और complex है. Anionic part of electrolyte should not associate with metal ion ligand and complex. Electrolyte का anionic part associate नहीं होता metal ion ligand and complex. The presence of electrolyte should not contribute to a property which we are measuring. Electrolyte का presence कंट्रीब्यूट नहीं करता है प्रॉपर्टी को जो जिसको मेजर कर सकते हैं. Most modern workers use the constant ionic medium to calculate the value of stoichiometric stability constant. ज़्यादातर जो वर्कर्स होते हैं वो कांस्टेंट आयोनिक मीडियम यूज़ करते हैं ताकि स्टोशियोमेट्रिक स्टेबिलिटी कांस्टेंट का वैल्यू को कैलकुलेट कर सके. Moreover, for most purpose, it is required to calculate the actual concentration of free metal ion of the complex species presence and not their activity and stoichiometric stability constant are more useful in such cases. ज़्यादातर पर्पस में ये ज़रूरी है कि फ्री मेटल आयन का जो एक्चुअल कॉन्सेंट्रेशन जो है कॉम्प्लेक्स स्पीशीज़ का वो कैलकुलेट होना चाहिए जो प्रेजेंट है और ना कि उसका एक्टिविटी और स्टोशियोमेट्रिक स्टेबिलिटी कांस्टेंट, क्योंकि ये दो जो है वो यूज़फुल नहीं है इस केस में. और फॉर सच प्रॉब्लम especially in investigation of bond formation and complexation reaction without interference of ionic strength. तो ऐसे प्रॉब्लम जहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन इन्वेस्टिगेशन कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शन होता है बिना किसी आयोनिक स्ट्रेंथ का इंटरफेरेंस के. द थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आर द वन रिक्वायर्ड. थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो ज़रूरत है